Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I have given you a worksheet and I will discuss the answer over here. The first question is choose the correct option. आपको correct option बताना है. Which of these is an irreversible change? इनमें से कौन सा irreversible change है? Melting of wax, freezing of water, boiling of paper, boiling of water or burning of paper. Burning of paper is an irreversible change. Irreversible change means it is a chemical change. Baking of cake is an example of baking of cake. कौन सा example है? It is an example of irreversible change. Now a change is a chemical change when it is accompanied by ऐसा change वो chemical change होता है जिसके साथ क्या हो energy change. Energy change means whenever a new substance is formed, change in energy takes place. For example, when you burn a paper, fine. So when you are burning a paper, it will take the energy, and when it cools down, it will release the energy. Therefore, it is a energy change process. Now, change in chemical properties, you all know that a chemical change always involves a change in chemical properties, and moreover, it involves the formation of new substance. That means all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पॉटर गिव्स क्ले द शेप ऑफ पॉट. एक पॉटर ने क्ले को शेप पॉट्स की शेप दे दी. ही बेक दिस पॉट्स इन एन ओवन. ओवन में बेक कर दिया. नो कैन द पॉटर गेट बैक द रॉ क्ले. क्या पॉटर को वो रॉ क्ले वापस मिल जाएगी? नहीं, बिकॉज बेकिंग से रॉ क्ले कन्वर्ट होगी किस में? पॉट में, जिसको हम वापस रीगेन नहीं कर सकते. वेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. जब एक पर्सन फीवर से सफ़र कर रहा है, मदर यूज टू चेक द फीवर फ्रॉम थर्मामीटर. मदर फीवर चेक करिए थर्मामीटर से. तो व्हाट डज द थर्मामीटर कंटेन दैट राइजेज एंड शोज द रीडिंग. थर्मामीटर जब राइज कर रहा है तो क्या चीज़ शो कर रहा है? क्या चीज़ राइज कर रही है? कौन सी चीज़ रीडिंग शो कर रही है? दैट इज योर mercury. We all know that thermometer contains mercury that actually rises up and shows the reading. The rise substance in the thermometer, that is your mercury, is an example of reversible change. Justify the statement. जो मर्करी राइज कर रही है वो एक रिवर्सिबल चेंज है. क्यों है? राइज ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज बिकॉज वेन थर्मामीटर इज कूल डाउन. मतलब जब आप थर्मामीटर को वॉश करेंगे तो वो कूल डाउन हो जाएगा, एंड जब वो कूल हो जाएगा तो मर्करी अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज एन इरिवर्सिबल चेंज. ग्रोथ ऑफ चाइल्ड जो है वो एक इरिवर्सिबल चेंज. आपको रीजन बताना है इसका. ऑब्वियसली इरिवर्सिबल है बिकॉज जब आप इन्फेंट से चाइल्ड में ग्रो कर जाते हैं, मीन्स जब आप एक न्यू बॉर्न बेबी से चाइल्ड में ग्रो कर रहे हैं, दैट्स अ यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ. आप चाइल्ड से वापस इन्फेंट में नहीं आ सकते. दैट्स व्हाई इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज. फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस है. क्यों है? बिकॉज हमने रिएक्शन में देखा था दैट CO2 plus water reacts together in the presence of sunlight in chlorophyll molecule will give you glucose, and the properties of glucose is totally different from CO2 and water. Means carbon dioxide and water is totally different. Therefore the photosynthesis is a chemical process. An apple is cut with the knife. एक एप्पल को हमने नाइफ से कट किया एंड लेफ्ट ओपन इन द एयर. एयर में ओपन छोड़ दिया. इट अंडरगोज अ चेंज. वहाँ पे एक चेंज हो रहा है. नेम द टाइप ऑफ चेंज. उसमें कौन सा चेंज है? जब आप एप्पल को कट कर रहे हैं तो इट इज़ एन फिजिकल चेंज बिकॉज हमने एप्पल का साइज रिड्यूस किया है सिर्फ. बट वाई देयर इज अ चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ एप्पल. एप्पल के सरफेस पे चेंज क्यों हो रहा है जब उसे हमने ओपन एयर में छोड़ा है? वी नो दैट एप्पल कंटेन्स आयरन. So when iron reacts with oxygen, it will form iron oxide. So therefore, the formation of iron oxide leads to the change in color of apple surface, that is in brown color. Now see, the surface of apple changes to brown color. ये बात सबने देखी है घर में. Due to the reaction of iron present in apple with atmospheric air. This atmospheric air means oxygen, carbon dioxide. Anyone can react, and this iron form oxide. ये आयरन जब एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म ऑक्साइड. देयरफॉर लीडिंग टू द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन कलर ऑन एप्पल व्हेन लेफ्ट ओपन आफ्टर कटिंग. नाउ द फादर ऑफ द नेशन लेड अ सॉल्ट मूवमेंट. एक सॉल्ट मूवमेंट की थी. फादर ऑफ नेशन इज योर महात्मा गांधी. नाउ ही डू अ मूवमेंट दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह, मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सो नेम द प्रोसेस फ्रॉम विच ही ऑप्टेन्ड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. कौन से प्रोसेस सॉल्ट आया था? दैट इज योर इवेपोरेशन. ये सब आपने पढ़ा हुआ है
कि सॉल्ट जब सॉल्ट वाटर से निकालते दैट इज़ योर इवेपोरेशन प्रोसेस। अब ये जो हमने सॉल्ट वाटर से निकाला तो एक्चुअली में कौन सा प्रोसेस, दैट इज़ योर फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को आपने एयर में बर्न किया, इट शोज द चेंजेस बाय कन्वर्टिंग इनटू वाइट कलर्ड पाउडर। मैग्नीशियम रिबन बर्न होकर वाइट कलर पाउडर दे रहा है आपको, दैट मीन्स दिस वाइट कलर पाउडर इज योर केमिकल चेंज। नाउ नेम द सब्सटेंस दैट अंडरगो अ चेंज। वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर चेंज आया, दैट इज योर मैग्नीशियम रिबन। कि हमने बर्न किसे किया है, मैग्नीशियम रिबन को, तो दैट मीन्स मैग्नीशियम रिबन इज अंडरगोइंग अ चेंज। सो व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ मैग्नीशियम, ओरिजिनल कलर क्या था मैग्नीशियम का, ग्रे कलर का था। व्हाट इज द चेंज, क्या चेंज आया, दिस ग्रे कलर कन्वर्टेड टू अ वाइट powder, this gray color converted to a white powder. Does it involve a chemical change? क्या ये chemical change involve करता है, yes, because a new substance is formed. Now what do you mean by a chemical reaction? अब chemical reaction क्या होती है, a chemical reaction involves a chemical change, एक chemical change आता है in which substance react, substance is your react to form a new substance. new substance क्या आपका यहाँ पे product, like in this magnesium burned with air, that is oxygen के साथ burn कर रहा है, magnesium plus oxygen is your reactant. now see magnesium plus oxygen is your reactant. what it gives you, magnesium oxide, this magnesium oxide is your new product, so it is known as a chemical reaction. now write a chemical reaction involved when magnesium ribbon burns in the air. chemical reactions पूछिए आपको, that is magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide. Now next question is what will happen if the products are formed. this is your product, it reacts with water, जो आपने सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी राइट समथिंग ऑन पेपर, हमने पेपर पे कुछ लिखा पेंसिल से, देन उसे इरेज कर दिया, फाइन। जब हमने इरेज किया वी सॉ दैट द साइज ऑफ इरेजर रिड्यूसेस एंड बिकम स्मॉलर, साइज ऑफ इरेजर जो है वो स्मॉल हो गया, रिड्यूस हो गया साइज में। नाउ नेम द टाइप ऑफ चेंज इन्वॉल्व, कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब आपने इरेजर से इरेज किया, इरेज करने से क्या हुआ, आपका सिर्फ इरेजर का साइज छोटा हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आया। नाउ जस्टिफाई योर आंसर, आई हैव एक्सप्लेन यू। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। Physical change, no new substance is formed, therefore it is known as reversible change. Chemical change, a new substance is formed, therefore it is known as a irreversible change. Only physical properties of matter change, physical properties change होती है आपकी। chemical properties, chemical change में chemical properties of substance change. Example melting of wax, example burning of wax. Now next, we all have seen the Titanic movie, हम सब ने Titanic movie देखी है। It contains an iron made ship, वहाँ पे एक आयरन की बनी हुई शिप थी जिसमें सब ट्रैवल कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली इट सैंक, वो डूब जाती है आपकी। सो व्हाट हैड हैपन टू द आयरन इन द शिप, जो आयरन शिप में प्रेजेंट था, क्योंकि आयरन की ही शिप बनी थी, तो जो आयरन था उसके साथ क्या हुआ, इट गेट रस्ट, बिकॉज आपने देखा है वो आयरन जो था आपका वो रस्ट हो गया, उसमें ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, देयरफॉर इट इज नोन एज रस्टिंग। नाउ नेम द प्रोसेस, दैट इज योर रस्टिंग। Now what do you mean by it? Rusting क्या है आपका? It is defined as a process in which the iron get attacked by moist air. Means यहाँ पे iron moisture से attack कर रहा है. Moisture is air and water vapor. Air is your oxygen and water vapor, the water present in the atmosphere. Now and form iron oxide. And वो क्या बना रहा है आपका? Iron oxide बना रहा है. So it is known as rust. Chemical reaction क्या हो गया आपकी? Iron plus oxygen plus water gives you iron oxide Fe2O3, that is your rust. Now oxygen plus water is your air with moisture, you can say it as moist air. Now next question is define crystallization. Crystallization क्या है? Is crystallization a physical change or a chemical change? Crystallization physical change है या chemical change है? Crystallization क्या है? A physical change है पहली बात। अब होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम दिस सॉल्यूशंस, मीन्स हम बड़े बड़े क्रिस्टल्स ले रहे हैं, प्योर सब्सटेंस ले रहे हैं हम, बट कहाँ से, उन्हीं के सॉल्यूशन से। लाइक हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे, तो दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन एंड इट इज़ अ फिजिकल चेंज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।